गुलबर्गा शहर के मिल्लत नगर में मौजूद मदरसा नजमुल कुरान लिलबनात का सालाना जलसा और इस्तकबाल माह रमज़ान व तकसीम इनामात का प्रोग्राम शानदार अंदाज में मुनक्किद किया गया था। इस जलसे में मुमताज़ उलमा इकराम और ख़ास मेहमानों ने शिरकत किया, जिनमें हज़रत मौलाना गुलाम दस्तगीर नूरी और रियाज अहमद खान बरकाती रजवी शामिल थे। मदरसे के जिम्मेदार अफराद मोहम्मद महबूब पटेल और मोहम्मद गौसुद्दीन साहब की सरपरस्ती में और प्रेसिडेंट मोहम्मद रियाज अहमद और सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान पटेल साहब की निगरानी में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस जलसे में मदरसे के तालिबात ने कुरान की तिलावत, कंजुल ईमान का तर्जुमा, हम्द नात, मनखबात, अज़कार के अलावा अहादीस व मुबारक और दुआएं पढ़कर अपनी इल्म व माहिरी का इजहार किया है। इस मदरसे के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तालिबात को इनामात से नवाजा गया है, जिसे देखकर वालिदैन ने भी खुशी का इजहार किया है। इस जलसे के इख्तिताम पर सभी मेहमानों के लिए खास ताम का इंतजाम भी किया गया था। ये प्रोग्राम माह रमज़ान के इस्तकबाल और तालिबात की कामयाबी को सराहने के लिए रखा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर मदरसे की कामयाबी के लिए दुआएं की हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, माँ काना और माँ यकून का बैन उन्हें सिखाया। सूरज और चांद हिसाब से हैं, मैं बंदाए आसी हूँ, अताकार मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार मौला। मेरा पहला सवाल है, इस्लामी साल में कितने महीने होते हैं? इस्लामी साल में 12 महीने होते हैं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान मुबारक, शव्वल, ज़ुल्क़अदा, ज़िलहिज्जा। मेरा छठा सवाल है, माह रमजान में कितने अशरे होते हैं? माह रमजान में 3 अशरे हैं। पहला रहमत का अशरा, दूसरा मग़फ़िरत का अशरा, तीसरा दोज़ख से आज़ादी का अशरा।
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاءاللہ. اچھا آپ لوگ مدرسے میں جا کر اتنا سب کچھ پڑھتے ہو, مجھے بھی کچھ پڑھ کے سناؤ. آپ سورۃ الاخلاص پڑھ کے سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آمینہ آپ مجھے شرائط نماز پڑھ کے سکھاؤ. شرائط نماز 6 ہے. نمبر 1 طہارت یعنی نمازی کا بدن اور کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا. نمبر 2 سطر کا چھپانا. نمبر 3 نماز کا وقت ہونا. نمبر 4 قبلے کی طرف منہ ہونا. نمبر 5 نیت کرنا. نمبر 6 تکبیر تحریمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایرم آپ ثنا پڑھ کے سناؤ. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اچھا آپ بولو اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں. نمبر 1 کلمہ پڑھنا. نمبر 2 نماز پڑھنا. نمبر 3 روزہ رکھنا. نمبر 4 زکوٰۃ دینا. 5واں حج کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہک آپ التحیات پڑھ کے سناؤ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آئیے میں نے شروع میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ بتاتی چلوں. اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے, اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں. اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانیوں, جس طرح چاند اور سورج برابر نہیں ہو سکتے, دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے اور روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں, علم ایک ایسی لازوال نعمت ہے جس سے انسانیت فروغ پاتی ہے. علم ایک ایسی لازوال نعمت ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. علم ہی سے انسانیت فروغ پاتی ہے. علم کے ذریعے ہی انسان اپنے رب کی معرفت و شناخت حاصل کرتا ہے. آج ہم سب جس جلسے میں تشریف لائے ہیں اور جن لوگوں نے جس کے لیے مسلسل ایک ٹائم تک قربانیاں دی اور مسلم سوسائٹی کو اسلام کی طرف لانے میں جس طرح کی جدوجہد کوشش مسلسل کر رہے ہیں, چونکہ محمد عرفان نیشنل اسکول کے میرے بیاج کے ہی ساتھی ہیں اور دیگر نظام بھائی اور دیگر جتنے بھی اس مدرسے کے لیے مدرسہ نجم القرآن دل بنا, اس مدرسے کا پہلا ورڈ آپ غور فرما لیں, نجم القرآن. قرآن کریم کے اندر بھی ایک سورہ ہے سورہ نجم, جس لیے سے انہوں نے رکھا ہے یقیناً اس نام کی برکت سے آج اس روشنی کو آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بچوں نے جس انداز سے, جس طریقے سے, جس لب و لہجے میں انہوں نے قرآن کے سورے پڑھے, التحیات پڑھا اور وضو کے فرائض, نماز کے شرائط, دیگر چیزیں جس انداز سے انہوں نے بیان کیا, نہ کسی کا خوف نہ کسی کا ڈر, بڑی اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی
मदीने में मौजूद है। शागिर्द के दिल में अपने उस्ताद का डर ना हो, वह फरमाबरदार शागिर्द भी नहीं कहला सकता है। जिस बच्चे के दिल में बाप का डर ना हो, वो फरमाबरदार बेटा नहीं कहला सकता है। उसी अंदाज से एक मिसाल देख ले, एक पीर का मुरीद है। मुरीद हमेशा अपने पीर की खिदमत में रहता है, अपने पीर के कामों को करता है, अपने पीर की हर बात को मानता है। लेकिन देखने में ये आया, अगर उस पीर का डर, उस पीर का खौफ उस मुरीद के दिल में ना हो तो उसे सच्चा मुरीद नहीं कहा जा सकता है। जो मुरीद अपने पीर से ना डरे वो सच्चा मुरीद नहीं हो सकता है। जो शागिर्द अपने असातिज़ा से ना डरे वो सच्चा शागिर्द नहीं हो सकता है। और जो बेटा बाप की खिदमत तो करे लेकिन बाप का डर दिल में ना रखे, वो पक्का और सच्चा और फरमाबरदार बेटा नहीं हो सकता है। तो बताओ, बाप के डर के बिना कोई सच्चा बेटा नहीं हो सकता है, उस्ताद के डर के बिना कोई सच्चा शागिर्द नहीं हो सकता है, पीर के खौफ के बिना कोई सच्चा पीर नहीं हो सकता है। तो फिर हम कैसे बंदे हैं जो रब के खौफ के बिना हम कहते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हम अल्लाह के बंदे तो हैं लेकिन सच्चे बंदे तो नहीं हो सकते हैं, अच्छे बंदे तो नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के कलाम के मुताबिक अल्लाह का खौफ जिसके दिल में होता है वो ईमान वाला होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। जानते हो डरने का फायदा क्या होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा खौफ खुदा से कांप जाता है, खौफ खुदा से कांपता है, खौफ खुदा अल्लाह के डर से कांप जाता है, हुजूर फरमाते हैं उसके आज़ाए बदन से उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं, उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सूखे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हो गुनाह करते करते सारी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन खौफ खुदा से अगर थोड़ा सा जिस्म कांप जाता है, खौफ खुदा दिल में पैदा होता है तो हमारे बदन से गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मदरसा नजमुल कुरान लिलबनात में आज 4 साल मुकम्मल होने की खुशी में एक अज़ीमुश्शान जलसा रखा गया था बानाम इस्तक़बाल माह रमज़ान व तक़सीम इनामात। मदरसे में 16 फरवरी 2025 को बच्चों का इम्तिहान लिया गया और 23 तारीख बारोज़ इतवार एक अज़ीमुश्शान जलसा रखा गया, जिसमें बयान करने के लिए रियाज़ खान साहब बिदर से तशरीफ़ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा अच्छे पैमाने पर हुआ और मैं तमामी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस मदरसे के सदर मोहम्मद रियाज़ अहमद साहब, मोहम्मद इरफान पटेल साहब और मदरसे के असातिज़ा और मदरसे के तमाम ज़िम्मेदार साथी जो हमसे जुड़कर काम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा नजमुल कुरान लिलबनात में सालाना जलसा रखा गया था इस्तक़बाल माह रमज़ान व तक़सीम इनामात, जिसमें बच्चों ने अच्छे नंबरात से कामयाबी भी हासिल की और उसमें बच्चों ने नात शरीफ भी जो है ना पढ़ा और साथ ही अस्कार नमाज़ पर भी जो है ना बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है ना परफॉर्मेंस किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चीफ़ गेस्ट की हैसियत से यादगीर से मदऊ किया गया था और डॉक्टर हुसैन बादशाह और यहाँ से गुलबर्गे से मोहम्मद मोहसिन साहब और चीफ़ गेस्ट की हैसियत से मोहम्मद साद अहमद शेख और साथ ही रौनक के स्टेज में मुबीन भाई और इस्माइल भाई, अय्यूब अली हिरोली और जिलानी पाशा और भी साथी जो है ना हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं वो भी जो है ना इसमें शिरकत फरमाए हैं। और ज़ेर सरपरस्ती में महबूब पटेल साहब और मोहम्मद गौसुद्दीन साहब ज़ेर सरपरस्ती में थे, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी चीफ़ गेस्ट, रौनक के स्टेज सभी का और उलमाए कराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमाए कराम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही असातिज़ा का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी मेरे साथ जो भी साथी जुड़े हुए थे मदरसा नजमुल कुरान लिलबनात के और जिन जिन हज़रात ने भी इस जलसे के लिए ताउन किया था, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही बच्चों के वालिदैन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस जलसे में आकर
शिरकत फरमा कर हमारी हिम्मत अफजाई किए। अहले मोहल्ला का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस जलसे में शिरकत फरमा कर बच्चों की हौसला अफजाई किए और साथ ही हमारे साथियों की भी जो है ना हिम्मत अफजाई की। जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।